નહીં કે માત્ર મહાદેવ કરો માત્ર આ તો બેઝિક પાવે છે કરવાનું જરૂરી છે. આ કરીશું તો આપણે બીજો સેકન્ડ થોટ આપણને આવશે, બીજો વિચાર આપણને આવશે અને તે સંસ્કૃતિ અને સમાજનું કાર્ય છે. ગુરુજી મૂળ ભેદ ગુરુજી આ છે કે પહેલા આવું કરો, આ જરૂરી છે. એના વિના તમારો પગ મજબૂત નહીં બનશે અને પગ મજબૂત બન્યા પછી તમે સમાજ માટે, સમાજના ઉત્થાન માટે, કોઈ પણ કાર્ય માટે તમારી આત્મશક્તિ જાગૃત થશે, બળ પેદા થશે. શિવાજી અને રાણા પ્રતાપ જે દુનિયા છે દુશ્મનોની સામે એ નાની વાત નથી. એ કોઈ આત્મબળથી સમગ્ર રામદાસ સ્વામીએ શિવાજીને ઉત્તિષ્ટ કર્યા અને એને સમગ્ર એક નાના સૈન્યના જૂથ લઈને કેટલા બધા રાજાઓ જોડે લડ્યા છે. આપણે સંસ્કૃતિની રક્ષા કરી. રાણા પ્રતાપ જંગલમાં ભટકી આવું કરે કેવી રીતે સલીમ જેવા આખી મોગલ સલ્તનતની સામે જન્મ્યો, ખતમ થઈ ગયો. પણ કોઈ ઓજસ લઈને, કોઈ પ્રાણ ચેતના લઈને એમને અને આ બધી વસ્તુ આવશે માત્ર પ્રાણ ચેતના, આત્મશક્તિ. એ જ આપણને આવું કાર્ય કરવા માટે પ્રેરિત કરશે. કોઈ જરૂરી નથી કે એક જ વ્યક્તિ આવું કરી શકે. આ તો બધા કરી શકે આવું છે. જરૂર છે માત્ર આપણે આપણી ચેતનાને એમાં જાગૃત કરીને રહીએ. એટલે આવો મારું કહેવાની મૂળ આ જે આધાર પછી બીજી વાત કહેવામાં આવું છું તે વાત એ છે કે માર્ચ મહિનામાં 4, 5 અને 6 जीवनं सर्वजीवानं पावनं पावनात्मकं नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् अनंत संसार समुद्रतारा नौका इताभ्यां श्री गुरवे नमः. अखंड
नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमाभ्यो नमो गुरुपादुकाभ्यो। बोलो पूज्य गुरुदेव की जय। मुझे प्रेम से सतगुरुदेव की जय। स्वामी परमानंद सिद्धेश्वर महाराज की जय। स्वामी सच्चिदानंद परमहंस महाराज की जय। अब आप लोग बैठे अपने आपने सिद्धार्थ स्वागत परिवार के अध्यक्ष भाई सुनील जोशी से प्रार्थना करूंगा वो आज के मुख्य अतिथि આજની ઘડી વડોદરા અને સમસ્ત ગુજરાત માટે એક અનન્ય પળ છે. વારંવારની પ્રાર્થના અને વિનંતી આજે પરિપૂર્ણ બને છે. પૂજ્ય ગુરુદેવે છેલ્લા 3 વર્ષથી થઈ રહેલી વિનંતીને માન આપીને એની પધારવાનું સ્વીકાર્યું એ આપણું સૌથી મોટું સદભાગ્ય છે. ક્રિશ્ચિયનનું કર્તવ્ય છે કે ગુરુ પાસે જાય, પણ એ તો અનંત કૃપા ગુરુની થાય તો જ ગુરુના આંગણે શિષ્યના આંગણે ગુરુદેવનું આગમન થાય. આજે સબરીની ઘેર કામ પધાર્યા છે આપણે કારણે જ હોઈ શકે, કારણ કે પુત્રો જાય તે કહે છે માતાના ભૌતિક એ તો આપણા પિતા છે, માતા છે, એટલે આપણા દોષ હશે, આપણી આગળ ક્ષતિ હશે એ બધું જ ભૂલી જઈને એમણે આપણું આ આમંત્રણ સ્વીકાર્યું છે. સાથે સાથે આજના સમારંભના ઉદ્ઘાટન માટે વડોદરાના મેયરશ્રી, ડેપ્યુટી મેયરશ્રી નરેન્દ્રભાઈ ભટ્ટ સાહેબ જે ધાર્મિક વૃત્તિના છે એટલું જ નહીં, સંસ્કૃતિ પ્રતિ અનન્ય ભાવના ધરાવે છે. એમણે સામાજિક ક્ષેત્રમાં ઝંપલાવ્યું છે, તેની સાથે સાથે એમની ધાર્મિક વૃત્તિ સંસ્કૃતિ માટેની ભાવના એટલી પ્રબળ અને જ્વલંત છે. હરિરાજ મને લાગે છે કે એટલા માટે એમણે આ આમંત્રણ આપણું સહજ સ્વીકાર્યું છે. એમનું પણ હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. बोलो परम पूज्य गुरुदेव की जय। बोलो स्वामी सच्चिदानंद महाराज की जय। समस्त ગુજરાત ચિત્રાસુર સાધક પરિવાર તરફથી હું પરમ પૂજ્ય ભગવતપાદ ગુરુદેવનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. बोलो पूज्य गुरुदेव की जय। માનનીય ડોક્ટર પટેલ સાહેબને હું વિનંતી કરું છું કે આ સુભાષી પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવનું સ્વાગત કરે. હું આપણા ડેપ્યુટી મેયર શ્રી નરેન્દ્રભાઈ ભટ્ટ સાહેબને વિનંતી કરીશ કે 5 મિનિટ લોકની ભાવના વ્યક્ત કરે. ડૉક્ટર સાહેબ, પ્રવીણભાઈ, ઉપસ્થિત સાધક મિત્રો, સજ્જનો અને સુનારી, આજે વડોદરા શહેર માટે ખરેખર આનંદ અને ગૌરવનો વિષય છે. એક સિદ્ધ પુરુષ વડોદરાના આંગણે પધાર્યા. 3 દિવસના વિવિધ કાર્યક્રમો વાંચ્યા. પૂજ્ય ગુરુદેવજીના જીવન વિશે પણ ઘણું જાણવા મળ્યું. અને જ્યારે જ્યારે વડોદરાના આંગણે આવા સિદ્ધ પુરુષો પધારે છે ત્યારે એમના નજીક જવાનો એક આનંદ, એક લાવો કે મને આ છેલ્લા વર્ષ દરમિયાન વિશેષ મળતો રહ્યો છે. ભારતીય સંસ્કૃતિ માટે કામ કરનારા સંખ્યાબંધ લોકો છે અને નિરંતર એમનું કાર્ય કરે જ જાય છે. ઉત્થાન માટે સતત પ્રયત્નશીલ રહે છે. ઘણી બધી વસ્તુની આપણને માહિતી હોતી નથી, પરંતુ એ જે સંસ્કૃતિમાં વિશ્વાસ ધરાવે છે એને ખબર છે કે સમોવામી યુગે યુગે યુગ પુરુષો દરેક યુગમાં જન્મ લે છે અને આવા કાર્યો પાછળ પોતાનું સમગ્ર જીવન ખર્ચી રાખતા હોય છે.
આજે વડોદરાના આંગણે પૂજ્ય ગુરુદેવજી અહીં પધાર્યા છે ત્યારે હું એક વક્તા તરીકે નહીં પણ શ્રોતા તરીકે એમના પ્રવચનને સાંભળવા માટે વિશેષ તો મેં સંમતિ આપી હતી. સંજોગોસાથ ગુરુદેવજીના સ્વાગતનો પણ મને લાભ મળ્યો. એ બદલ આયોજકોનો હું આભાર માનું છું અને પૂજ્ય ગુરુદેવજીના પ્રવચનનો આપ સૌ લાભ લઈ શકો. એમના સાનિધ્યમાં આપ તો 3 દિવસ અહીં રહેવાના છો, દિવસ રાત, પરંતુ અમારા જેવાને પણ વડોદરાના આંગણે પૂજ્ય ગુરુદેવજી પધારીને જે લાભ આપ્યો છે, એમના અમૂલ્ય સમયનો જે ભોગ આપ્યો છે, એ બદલ એમનો હાર્દિક આભાર માનીને વડોદરા શહેર વતી એમનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ભારત માતા કી જય. મહાલક્ષ્મી રૂપમ સ્વરાંગો નિત્યમ આચાર્ય રૂપમ પરમં સ્વરીયમ દિવ્યોવતાંબૈ સહિતમ નમામિ. सम्माननीय भट्ट साहेब, पटेल साहेब, जोशी जी और आप सभी उपस्थित छात्रों, शिष्यों और बहन, मैं जब भी गुजरात की धरती पर आता हूँ, मेरे मन में अत्यंत आनंद और प्रफुल्लता की अनुभूति होती रहती है. यद्यपि मैं पूरे भारतवर्ष में घूमता हूँ और प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक प्रांत में जाता हूँ, विदेशों में भी जाने का अवसर मिलता है, मगर मैं विशुद्ध मन से इस बात को स्वीकार करता हूँ कि गुजरात की धरती मेरे लिए ज्यादा आनंद देने वाली है और ज्यादा प्रफुल्लता देने वाली है. इसका कारण मेरे पूर्वज, मेरे दादाजी गुजरात के ही रहने वाले थे, गुजरात में ही बड़े हुए. मेरे पिताजी का जन्म गुजरात में हुआ और शायद ये संस्कार मेरे मानस में और मेरे रक्त में प्रवृत्त रहे हों. और ऐसा लगता है कि जैसे मैं बड़ी राजस्थान में रहता हूँ, मगर मेरी पितृभूमि, मातृभूमि गुजरात है और इसीलिए बार बार गुजरात में आने की इच्छा होती है, यहाँ बात करने की इच्छा होती है. अभी मैंने भगवत पाद शंकराचार्य के श्लोक को आपके सामने उद्धृत किया और इस श्लोक में उन्होंने एक बहुत ही महत्व की बात कही है. शंकराचार्य एक ऐसे युग पुरुष हुए हैं जिनको सही अर्थों में भारतीय संस्कृति का रक्षक और पोषक कह सकते हैं. जब बौद्ध धर्म भारतवर्ष में बहुत अधिक फैल गया और ऐसा लगा कि जैसे हिंदुत्व सारा बौद्ध धर्म में ही प्रवृत्त हो जाएगा, ऐसे समय में उन्होंने अद्वैत भाव की सृष्टि कर अपने मतांतरों को, अपने चिंतनों को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को सामने रख करके इस बात को स्पष्ट किया कि जीवन की पूर्णता भौतिकता के माध्यम से संभव नहीं है. भौतिकता कुछ क्षणों के लिए सुख दे सकती है, भौतिकता कुछ क्षणों के लिए आराम भी दे सकती है, भौतिकता देह को तुष्टि प्रदान कर सकती है, मगर भौतिकता जीवन में आनंद प्रदान नहीं कर सकती, भौतिकता उमंग पैदा नहीं कर सकती. और जितनी भी भौतिक समृद्धि, जितनी भी भौतिक उन्नति व्यक्ति के जीवन में होगी, व्यक्ति के जीवन में उतनी ही तृष्णाएं, उतनी ही चिंताएं, उतनी परेशानियां, उतना ही दुख और उतनी व्याधियां व्याप्त होती रहेंगी. इसलिए कि भगवान ने व्यक्ति के जीवन को बनाने
के साथ साथ उन्होंने इस बात की भी रचना की कि व्यक्ति के जीवन में दोनों स्थितियां होनी चाहिए। उनका भोगमय जीवन हो मगर साथ ही साथ योगमय जीवन भी हो। केवल भोग से और केवल योग से जीवन की पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती। यदि केवल व्यक्ति सन्यासी जीवन ही व्यतीत करे और केवल पर्वतों में और गंगाओं में जाकर के रह जाए और समाज से कट जाए तो वह जीवन भी शंकराचार्य की नजर में और हमारी नजर में व्यर्थ है, क्योंकि उस व्यक्ति का कोई श्रेय समाज को प्राप्त नहीं हो सकता। और जब तक कोई कार्य समाज को प्राप्त नहीं हो सकता तब तक उसकी तपस्या, उसकी साधना, उसका चिंतन, उसकी विचार, उसकी जो कुछ की उन्नति है वह सब व्यर्थ है। इसलिए शंकराचार्य ने कहा कि उस भौतिकता में आनंद की उपलब्धि के लिए साधना की नितांत आवश्यकता होती है, क्योंकि मार्कंडेय पुराण ने कहा है श्री सुंदरी सेवन तत्पराम भोगस्थ मोक्षस्थ करस्थ एव। भगवती लक्ष्मी और भगवती काली, क्योंकि त्रिगुणात्मक स्वरूप में तीन देवियां ही पूरे विश्व को संचालित करती हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। महालक्ष्मी के माध्यम से हम जीवन में संपन्नता, पूर्णता, श्रेयता, ऊर्जता प्राप्त करते हैं। सरस्वती के माध्यम से हम जीवन में आध्यात्मिकता, चिंतन, विचार, अच्छाई, बुराई प्राप्त करते हैं। और महाकाली के माध्यम से हम रोग मुक्ति, अकाल मृत्यु मुक्ति और जीवन की व्याधियों की मुक्ति की प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से तीनों ही स्वरूपों को समन्वय करने से ही जीवन की पूर्णता संभव है। मगर उन्होंने कहा है कि इन तीनों ही देवियों, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, इन तीनों की एक साथ आराधना, चिंतन करने से ही भोगस्थ मोक्षस्थ करस्थ एव, भोग की प्राप्ति भी होती है तो जीवन में आनंद की अनुभूति भी होती है। क्योंकि भट्टरी ने कहा है कि भोग अपने आप में ही रोग का एक प्रारंभिक बिंदु है। जहां भोग है वहां रोग है ही, क्योंकि जब व्यक्ति धन कमाएगा, ऐश्वर्यवान बनेगा तो उसमें यह रोग उसके साथ ही व्याप्त होगा कि ये धन मेरा बर्बाद नहीं हो जाए, चोरी नहीं हो जाए, खर्च नहीं हो जाए, समस्या नहीं आ जाए, इनकम टैक्स की प्रॉब्लम नहीं आ जाए और किसी प्रकार की चिंतन नहीं आ जाए। उस भोग के साथ यह रोग अपने आप में लगा हुआ है। जब व्यक्ति रूपवान होगा तो उसमें हर क्षण ये चिंता जिसके साथ लगी होगी कि ये मेरा रोग समाप्त नहीं हो जाए, झुर्रियां नहीं पड़ जाए, खाल सफेद नहीं हो जाए, कसकार नहीं हो जाए, तकलीफ नहीं हो जाए। प्रत्येक भोग के साथ एक रोग लगा हुआ है। शंकराचार्य कह रहे हैं कि इस रोग और भोग के बीच में एक माध्यम और जरूरी है जो कि आम व्यक्ति भूल गया है। वह व्यक्ति भोग में तो बन गया है और भोग में बनने की स्थिति हमारे सन्यासियों ने, साधुओं ने, योगियों ने भी कही है। मैंने अपने प्रश्न के प्रारंभ में कहा है कि केवल सन्यास बनना और केवल सन्यासी बनकर के घूमना जीवन की श्रेष्ठता नहीं है और केवल पूर्ण गृहस्थ बन जाना भी जीवन की श्रेष्ठता नहीं है। क्योंकि पूर्ण गृहस्थ अगर बन जाते हैं, केवल धन और पुत्र और ऐश्वर्य के अंदर ही निमग्न हो जाते हैं तो वह जीवन तो अत्यंत ही वृद्धावस्था, कष्टता और दुर्बलता, दुख और परेशानियों के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जो समृद्धवान है और पूरे भारतवर्ष में जितने भी समृद्धिशाली व्यक्ति हैं, लखपति हैं, करोड़पति हैं, ऐश्वर्यवान हैं, बिजनेसमैन हैं, यदि आप उनको देखेंगे तो वे अत्यंत ही दुखी और परेशान हैं। बाहर से बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, उनका वैभव दिखाई देता है, कोठियां दिखाई देती है, नौकर चाकर दिखाई देते हैं, मगर यदि मूल में जाकर के देखें तो वे कई रोगों से ग्रस्त हैं। उनको डायबिटीज है, उनको ब्लड प्रेशर है, उनको टेंशन है, उनके शरीर में और तकलीफें हैं, रात उनको नींद नहीं आ पाती, हर समय टेंशन। इसलिए केवल संन्यास भी आनंददायक नहीं है। जो केवल गंदराओं में बैठे हैं और केवल साधनाओं में रहते हैं वह जीवन भी अपने आप में तुच्छ है, व्यर्थ है, क्योंकि उनका समाज से संबंध नहीं है। इसीलिए शंकराचार्य ने कहा है कि इन दोनों के बीच में एक और चिंतन है और तथ्य है। उस तथ्य को साधना कहते हैं, यज्ञ कहते हैं, पूजन कहते हैं, जप कहते हैं, तीर्थ कहते हैं, व्रत कहते हैं, ज्ञान
ऊंचे से ऊंचा सन्यासी भी यदि सन्यासी ही है तब भी दिन को 11 बजे देखता रहता है कि अभी शिष्य आया नहीं भिक्षा मांग करके और भोजन बनाने के लिए कोई शिष्य आया नहीं, वो भी चिंता करता रहता है। बस सन्यासी में क्या काम है? क्योंकि मैंने सन्यासियों को देखा है 20 साल शुद्ध सन्यासी रहा व्यस्त छोड़ करके और 20 साल व्यस्त जीवन को भी देखा है। इसलिए मैं बिल्कुल धड़ल्ले के साथ कह सकता हूँ कि सन्यास जीवन में क्या न्यूनता है क्या विशेषता है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि व्यस्त जीवन में क्या न्यूनता है क्या विशेषता है। न व्यस्त जीवन अपने आप में पूर्ण है क्योंकि उसमें आनंद नहीं है। आनंद इसलिए नहीं है कि अगर मेरे पास यदि बिजनेसमैन के पास बहुत बड़ी कोठी है, नौकर चाकर है, ऐसा आराम है, भोग विलास है, एयर कंडीशन है, ट्रांजिस्टर है, टेप रिकॉर्डर है, टीवी है, वो सब कुछ है, जीवन की क्या जरूरत है? हमने जीवन में जो कुछ प्राप्त किया है समाज को कैसे दे सकते हैं? वो कहते हैं क्या जरूरत समाज की? ऐसा जीवन भी अपने आप में पूर्णता प्राप्त हुई। शंकराचार्य ने कहा है, उन्होंने कहा कि जीवन की पूर्णता इस बात में है कि हम भोगमय बने और हम योगमय भी बने। भोग और योग दोनों का सम्मिलन और सम्मिश्रण करने से ही जीवन में आनंद की अनुभूति हो सकती है और उसी आनंद की अनुभूति प्रदान करने के लिए यहाँ के आयोजकों ने इस प्रकार के उत्तम शिविर की व्यवस्था की है और इसीलिए हम सब उसके धन्यवाद और आभार प्रदर्शन करते हैं। वास्तव में ही आपने पैंट पहन करके, शर्ट पहन करके, कुर्ता पहन करके भी घूमे होंगे आप जीवन में और घूमते हैं, मगर आप इस समय जो मेरे सामने बैठे हैं अपने आप में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे वास्तव में तपोमय जीवन में बैठे। वास्तव में एक आनंद है। यहाँ पर कोई पंखा नहीं लगा हुआ, आपके पास एयर कंडीशन भी नहीं लगा हुआ है, मगर फिर भी जीवन में एक प्रफुल्लता है, एक जीवन में आनंद है, एक ऐसा एहसास है कि हम कुछ विशेष करने जा रहे हैं। एक ऐसा विशेष जो हमारे जीवन में न्यूनता है उनको इस प्रकार के माध्यम से दूर किया जा सकता है। इस प्रकार के जीवन के लिए जो कि हमारे पूर्वज, इसलिए कि हम अपने पूर्वजों से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। किसी भी स्थिति में हिंदुत्व अपने आप में अगर देखा जाए तो बहुत ही एक व्यापक और विस्तृत दृष्टिकोण है। इसकी कोई विशेष चिंतन नहीं है। एक हिंदू मंदिर में चला जाता है, मस्जिद में भी चला जाता है, घर में जाकर भी मतलब प्रार्थना कर लेता है तो हिंदू धर्म से खंडित नहीं होता। यदि मांस खाता है तब भी हिंदू है, मांस नहीं खाता है तब भी हिंदू है। अगर तीर्थ करता है तब भी हिंदू है, नहीं तीर्थ करता है तब भी हिंदू है। यदि लोग पूजा पाठ करता है तब भी हिंदू है, नहीं पूजा पाठ करता है तब भी हिंदू। पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा धर्म और अध्यात्म का चिंतन बेस ग्राउंड केवल गुजरात में। सबसे ज्यादा व्यक्ति धार्मिक गुजरात में, सबसे ज्यादा आध्यात्मिक चिंतन गुजरात में, सबसे ज्यादा भगवान के प्रति आस्था युक्त गुजरात में। पूरे भारतवर्ष में देख लीजिए, चाहे राजस्थान देख ले, चाहे दिल्ली देख ले, चाहे बंगाल देख ले, चाहे कर्नाटक देख ले, मगर इतनी आध्यात्मिकता और चेतना गुजरात के अलावा और कहीं नहीं है। और यहाँ एक प्रश्न उठता है कि इतना आध्यात्मिक चिंतन यहाँ पर गुजरात के व्यक्तियों की आम चिंतन है कि किसी भी मेहमान को, किसी भी व्यक्ति को भोजन करवाया जाए। ऐसे कई आश्रम चलते हैं जहाँ आने वाले व्यक्तियों को भोजन करवाया ही जाता है। 100 आदमी आ जाए, 50 आदमी आ जाए, जलाराम बापू का आश्रम है, वहां जितने भी भोजन करें। ऐसी आस्थाएं हैं। प्याऊ लगाते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं, धन प्रदान करते हैं, मंदिरों को बनाने में खर्च करते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं। पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी हिल स्टेशन देख लें तो सबसे ज्यादा सैलानी गुजरात के। अगर वे मनाली और नैनीताल और काठमांडू को जितना है तो गुजरात के यात्रियों की वजह से उनका योगदान 60-70% मंदिरों में। मगर इतना आध्यात्मिक होते हुए भी सबसे ज्यादा दंगे गुजरात में होते हैं। कोरबा में देख लीजिए, अहमदाबाद में देख लीजिए, तो समाज चलता ही रहता है। सबसे ज्यादा सूखा अगर पड़े तो यहाँ पर जाता है। कैसा क्यों होता है?
अगर हमारे संस्कृति बिल्कुल सही है, हमारे धर्म ग्रंथ बिल्कुल सही है, तो ये प्रश्न हमारे सामने उठना चाहिए कि इतना व्यक्तियां धार्मिक, इतना धार्मिकता होते हुए भी, या इतना दुख, इतनी माता, इतनी लड़ाई, इतनी झगड़े, इतनी परेशानियां, इतना आगजनी, ये सब गुजरात की धरती पर इतना क्यों हो रहा है? कारण क्या है? अगर पिछले साल भर के या 2 साल की हम आंकड़े बात सरकार से देखें तो सबसे ज्यादा धन की हानि या धन की हानि गुजरात है। पूरे गुजरात समाचार अखबार के पूरे भवन को घूम दिया गया, लाखों रुपए नुकसान कर दिया गया। कितनी अधिक मारकाट होती है, इसके पीछे कुछ न कुछ कारण है, और उसके पीछे कारण यह है कि कितना धार्मिकता होते हुए भी जो पूर्वजों ने जो तरीके बताए हैं, जिस तरीके के माध्यम से साधना होनी चाहिए, उन तरीकों का विज्ञान नहीं। हम केवल पेड़ की जड़ में पानी दें तो पेड़ हरा भरा हो सकता है, मगर मैं यहाँ पानी देता ही रहूं और मैं बहुत खुश हूं, मैं पानी देता जा रहा हूं, और आप भी कहेंगे कि गुरुजी आप पानी बिल्कुल देते जा रहे हो, पेड़ तो वहां खड़ा है, यहाँ हरा भरा नहीं हो सकता। यह सही चिंतन युक्त आराधना या साधना या यज्ञ या चिंतन बिल्कुल एक प्रैक्टिकली सही तरीके से हो तो निश्चित रूप से समृद्धता प्राप्त होती ही है। हम उस चिंतन को भूल गए, हम उस विचारधारा को भूल गए, हम कार्य तो करते हैं मगर जो पूर्वजों के बताए हुए तरीके से वह नहीं हो पाता है। और आप पूछेंगे कि क्या अमेरिका में इतनी कुछ है, अगर वो समृद्धि क्यों? और मैंने ये कहा कि समृद्धता तो योग युक्त है। हमारा प्रदेश परेशान है, वहां समय पर वर्षा नहीं हो रही है, कितना धार्मिक वातावरण होते हुए वहां पर चैन नहीं है, हर डिस्टर्बेंस है कि न मालूम कल को क्या हो जाए। हमारा समाज सुखी हो, हमारा देश सुखी हो, हम स्वयं सुखी हो, पूर्णता प्राप्त कर सके, ये 3 दिनों का आयोजन इसी कार्य के निमित्त है। और मैं आशीर्वाद देता हूं कि आप अपने जीवन में जो पूर्णता प्राप्त कर सकेंगे। सामने जो उठाएंगे, मेरे साथ निवेदन है कि वो भी वहां पर पहुंचे। ओम अग्निन्दूराम्भोरोदरे हव्यवामुपबरुवे देवाम् आसादयादिह। हस्ते पुष्पान्नादाय, हाथ में पुष्प ले लीजिए। ओम चत्वारि श्रृंगात्रयो अस्य पादाद्वे शिरे के सप्तहस्तानो अस्य
त्रिदावत्लो रेखवोरो रविदिमो देवो मर्त्यां आविवेश शांति के वरद नामाग्ने नमः ध्याये ध्यानं ध्यानार्थे पुष्पांजलि